slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. जाना जाता है, आपको हमने पढ़ाई थी किसमें, भीली चित्रकला, ठीक है, क्लियर। और 1998 में इन्हें अहिल्या देवी, जो अहिल्या सम्मान होता है, उसी उससे भी इन्हें क्या पुरस्कृत किया गया, ठीक है। तो कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं इन्हें? सबसे पहले तो शिखर सम्मान 1986-87 में, फिर अहिल्या सम्मान मिला है कब, 1998 में, और 2021 में पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। अब देखते हैं इनके चित्र में, तो देखिए इनके चित्र में क्या है, प्रमुख पशु जैसे ये मछली है, ठीक है, ये मोर है, ठीक। तो इस प्रकार के आपको सारे क्या देखने को मिलेंगे, पशु पक्षी इत्यादि देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको वृक्ष भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। इनकी आत्मकथा का नाम है डॉटेड लाइन्स बुक। क्या है? डॉटेड लाइन्स बुक इनकी आत्मकथा, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा किए गए प्रमुख चित्र का वर्णन किया है इन्होंने, ठीक है, कि प्रत्येक चित्र के पीछे कुछ कहानी होती है, तो उसी कहानी को इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं, पिथोरा चित्रकला। कौन है? भूरी बाई, ठीक है, आईएमपी नाम है, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर क्या है, दुर्गा बाई व्योम, 2022 के प्रीलिम्स में आ चुकी हैं ये। कौन? दुर्गा बाई व्योम, ठीक है। अब क्यों जाना जाता है इन्हें? देखो 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से? पद्मश्री अवार्ड से, ठीक है। देखिए दुर्गा बाई व्योम कहाँ से संबंधित है? गोंड जो चित्रकारी है उससे संबंधित है, ठीक है। और कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? मंडला जिले से है ये, बरबसपुर में, ठीक है, बरबसपुर की निवासी। और इन्होंने
किनको देख करके अपनी चित्रकारी शुरू की थी? जनगण सिंह श्याम को देख करके, ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था। ठीक, और इनकी चित्रकारी आज भी मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय, जो इंदिरा गांधी जनजातीय संग्रहालय है भोपाल में, वहां पर इनके चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, क्लियर। तो ये हुई कौन? दुर्गाबाई व्योम। ठीक है, और इनको दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। कौन सा? दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान से। ठीक है, ये भी आईएमपी हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कौन सी चित्रकारी करती हैं ये? तो गोंडी चित्रकारी। ठीक, कौन सी? गोंडी चित्रकारी। ठीक है, और किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जैसे भूरी बाई किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। उसी प्रकार जोधैया बाई किस संबंधित थी? बैगा जनजाति से। तो आपको उनकी जनजाति भी याद रखना है, किस जिले से ये भी याद रखना है, और कौन सा अवार्ड उन्हें दिया गया है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। 2021-22 के प्रीलिम्स में पूछा था, इनके ऊपर क्वेश्चन था, श्रीमती दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो किससे? गोंड शैली से संबंधित है। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारे व्यक्तित्व है, पेमा फाल्या। देखिए मेंस के सिलेबस में भी इनका नाम है और प्री में भी हमको पढ़ना ही है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ के चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? चंद्रशेखर जो गांव है आजाद नगर, वहां पे उनका जन्म हुआ था। भील जनजाति की प्रसिद्ध चित्रकारी पिथोरा के महान कलाकार हैं। किससे? पिथोरा चित्रकला के महान कलाकार है। इसे पिठोरा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में यदि पिथोरा आए या पिठोरा आए, दोनों एक ही है। ठीक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी में पिठोरा लिखा हुआ है और सामान्य पुस्तकों में पिथोरा लिखा गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से संबंधित है ये? तो झाबुआ जिले से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अब इन्हें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1986 में शिखर सम्मान, सर्वोच्च सम्मान होता है मध्य प्रदेश शासन का, उससे नवाजा गया या पुरस्कृत किया गया। किससे? शिखर सम्मान से। कब? 1986 में। और 2017 में इन्हें तुलसी सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान? तुलसी सम्मान दिया गया। जब हम मध्य प्रदेश के फैक्चुअल क्लास लाएंगे तो प्रमुख अवार्ड, ठीक है, जैसे तुलसी पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान, ठीक है, कबीर पुरस्कार, ये इनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। उन क्षेत्रों को हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और 2020 में क्या? इनका निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया क्या? पेमा फाल्या जी। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा आईएमपी है, क्योंकि अभी हाल ही में 2020 में इनका क्या हुआ? निधन हुआ है। ठीक, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे हमारे व्यक्तित्व में कौन? लहरी बाई जी। कौन? लहरी बाई जी। बहुत ही आईएमपी देख लीजिए आप चित्र में। इनके ऊपर ये प्रमुख मोटे अनाज की किस्म की क्या है? बीज रखे हुए हैं। तो इन्होंने किसका निर्माण किया है? बीज बैंक बनाया है। किसके? मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स का। ठीक है, इसलिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्यों? मध्य प्रदेश की डिडोरी जिले की आदिवासी महिलाएं किस जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से संबंधित है। उन्हें बाजरे के 150 किस्म के बीजों को संरक्षित कर किया है। कितने? 150 प्रकार की प्रजाति किसकी? बाजरे की। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? मोटे अनाज का। किसको? लहरी बाई जी को। ठीक, और इन्हें इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मिलेट बैंक की मालकिन के भी नाम से जाना जाता है। किसको? लहरी बाई को। तो कहाँ से संबंधित है ये? डिंडोरी जिले से। बहुत ही आईएमपी है ये, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गया कौन? लहरी बाई जी। कहाँ से है? बैगा जनजाति से संबंधित है, डिंडोरी जिले से। और डिंडोरी जिले में कौन सा? बैगाचक क्षेत्र है। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट व्यक्तित्व देख लेते हैं, जोधैया बाई। ठीक है, जनजातीय कला को संरक्षित कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करने के लिए उमरिया की बैगा जनजातीय कलाकार जोधैया बाई को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया। तो देखो इसी लाइन में 4 फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो कहाँ से संबंधित है ये? उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। कौन सी जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से संबंधित है। और कौन सा अवार्ड मिला इनको? पद्मश्री अवार्ड मिला है। कौन सा? पद्मश्री अवार्ड। कब मिला है? 2023 में। ठीक है, कब? 2023 में मिला है। और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है।
ठीक है, अभी लास्ट मंथ ही मृत्यु हुई है इनकी। ठीक है, इसलिए इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा आईएमपी हो जाता है। ठीक है, तो देखो, जोधैया बाई बैगा, ठीक है, दशकों से अपनी चित्रकला से पारंपरिक बैगा जनजाति संस्कृति को अपने दर्शन को लोकप्रिय बनाई है। मतलब कि इन्होंने जो भी बैगा जनजाति की जो संस्कृति है उसको अपनी चित्रकारी से क्या किया है, सजाया है, जिसके माध्यम से उनकी जो संस्कृति है उसको लोगों से परिचित करवाया है, इसलिए इन्हें इतना सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखो 2022 में अब इनको कौन सा अवार्ड मिला है, 2022 में महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कौन सा महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण काम करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से भी क्या सम्मानित किया है। किसने, रामनाथ कोविंद जी ने। और द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें कौन सा अवार्ड दिए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, पद्मश्री अवार्ड दिए हैं। ठीक, क्लियर, ये हो गया कौन, जोधैया बाई जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कहाँ से देख लीजिए, चित्र देख लीजिए तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रानी कमलापति, ये भी गोंड जनजाति से संबंधित। ठीक है, 18वीं शताब्दी की गोंड रानी थी, वे भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। ठीक है, रानी कमलापति, ठीक है, रानी कमलापति गोंड राजा निजाम शाह की 7 पत्नियों में से एक थी। ठीक है, रानी कमलापति को राजा, ठीक है, तो रानी कमलापति की खूबसूरती पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो आपको ये याद होगा कि जो इनके समय पे दोस्त मोहम्मद खां अपने पति की हत्या करने के पश्चात, जो इनके पति थे, ठीक है, इनके पति के जो भतीजे थे या इनके भतीजे थे, उन्होंने उनके राज्य में विद्रोह कर दिया, किसके विरुद्ध, रानी कमलापति के विरुद्ध। तो इन्होंने सहायता मांगने के लिए किससे, किसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो दोस्त मोहम्मद खां की तरफ हाथ बढ़ाया, और इन्होंने बदले में बोला कि हम आपको इतने इतने रकम देंगे। ठीक है, जब दोस्त मोहम्मद खान ने इनके भतीजे को पराजित किया तो इन्हें बदले में क्या दिया, कुछ राशि दी, लेकिन पूर्ण राशि नहीं दे पाई, तो फिर उन्हें दोस्त मोहम्मद खान को इन्होंने भोपाल दिया। ठीक है, तब से दोस्त मोहम्मद खान ने ही किसकी, आधुनिक भोपाल की नींव रखी थी, किसने, दोस्त मोहम्मद खान ने। और इन्होंने ही जगदीशपुर जो गांव था उसको राजधानी बनाया और उसका नाम बदल के क्या रखा, इस्लामपुर रखा था। तो ये आपको याद रखना, किससे, रानी कमलापति, जो गोंड रियासत की रानी थी, निजाम शाह की 7 पत्नियों में से एक थी। ठीक है, और इनके द्वारा ही सभागार बनाया था, कहाँ पर, भोपाल में, जिसे, ठीक है, तो कौन सा सभागार बनवाया था, कहाँ पे, भोपाल में। अब देखिए इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर क्या हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम करके क्या रखा गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, और भोपाल में रानी कमलापति कमलापति महल भी है, जिसे जहाज महल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आईएमपी हो जाता है आपके पेपर की दृष्टि से। ठीक, क्लियर, तो रानी कमलापति कौन थी, क्योंकि देखिए चर्चे में तो है अभी एकमात्र देश का निजी रेलवे स्टेशन कौन सा हुआ है, कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, हाल ही में इसका नाम बदला गया। ठीक है, कौन सा ग्रुप संचालित कर रहे हैं इसको, द बंसल ग्रुप, बंसल वन। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, राजा नरेश चंद्र सिंह, बहुत ही आईएमपी है, इन्हें जाना जाता है प्रदेश में 13 दिन की, ये क्या बने थे, 13 दिन के सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, संविध सरकार के पतन के पश्चात, जो संविध सरकार आई थी उसके पतन के पश्चात गोंड आदिवासी राजा नरेश चंद्र सिंह 13 से 25 मार्च 1969 तक मुख्यमंत्री, और छत्तीसगढ़ के 22गढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो सारंगढ़ रियासत के राजा थे, कहाँ के, सारंगढ़ रियासत के राजा थे। ठीक है, और इन्होंने 1 जनवरी 1948 को भारत में अपने राज्य का विलय कर दिया था। इसके पश्चात राजा नरेश चंद्र कांग्रेस के प्रमुख नेता हो गए, उन्होंने 1952 में पहला अपना चुनाव जीता था। और फिर मध्य प्रदेश, तत्कालीन मध्य प्रदेश में क्या 13 दिन के लिए क्या बने थे, सीएम बने थे। ठीक है, तो इनकी रियासत का नाम याद रखना है, क्या है इनकी रियासत का नाम, सारंगढ़ रियासत। क्या नाम है इनका, सारंगढ़ रियासत। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा का क्या रहे थे, सदस्य रहे थे। ठीक है, और जो जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो पहली विधानसभा जब बनी थी, मध्य प्रदेश देश राज्य की पहली विधानसभा जो गठित हुई थी,
उस समय ये रविशंकर शुक्ल की जो मंत्रिमंडल थे उसमें कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। किसमें? कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? राजा नरेश चंद्र सिंह। ठीक, चलिए नेक्स्ट में आते हैं दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, आदिवासी समाज के कद्दावर नेता दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, तब 1944 को जन्म हुआ और इनकी डेथ कब हुई? 2015 में। ठीक है, और भारत की 16वीं लोकसभा के ये सांसद थे। ठीक है, 2014 में मध्य प्रदेश के रतलाम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए और 6 बार ये लोकसभा के सदस्य रहे। सबसे पहले कांग्रेस में थे, इसके पश्चात फिर किस में आ गए? ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ठीक है, तो इनकी उपलब्धियां क्या है? ठीक, 1998 से 2001 और 2002 से 2004 तक के ये अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। इसके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। साथ ही दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने ही किसका निर्माण किया था? पैसा अधिनियम। ठीक है, पंचायत, ठीक है, एक पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, ठीक, एक्ट ये आया था। ठीक है, पेसा एक्ट कब आया था? 1996 में। इसको बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 आया था। ठीक, उसको उस एक्ट का ड्राफ्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? दिलीप सिंह भूरिया ने। तो ये आईएमपी हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये भी जनजातीय व्यक्तित्व है। इसके पश्चात श्रीमती जमुना देवी जी, जन्म कब हुआ था इनका? 1929 में, धार जिले के सरदारपुर में। कहाँ पर? धार जिले के सरदारपुर में। ठीक है, जहां पर खरमोर पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, वहीं पर। और सॉरी, और ये एक वरिष्ठ आदिवासी नेता थी। इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में धार जिले के कुक्षी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ से? कुक्षी क्षेत्र से। और 1962 में झाबुआ के लोकसभा सदस्य के रूप में भी चुनी गई। ठीक है, और 1978 से 81 तक के राज्यसभा की भी क्या रही है? सदस्य रही हैं। कौन? जमुना देवी जी। ठीक है, और 1998 में, तब 1998 में ये प्रदेश की पहली क्या बनी? उप मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। ठीक, किसकी सरकार में? दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, और पहली महिला प्रतिपक्ष की नेता भी थी। ये पहली महिला प्रतिपक्ष की नेता भी थी। पहली महिला थी जो प्रतिपक्ष की नेता बनी। ठीक है, और साथ में प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर भी रही है। किसकी? मध्य प्रदेश की। प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर भी रही है। किसकी? मध्य प्रदेश की। ठीक है, और झाबुआ से 6 बार जीत करके क्या बनी थी? विधायक बनी थी। फिर 1 बार लोकसभा की सदस्य रही हैं और राज्यसभा में भी क्या रही है? मेंबर रही है ये। ठीक, क्लियर। इनका उपनाम क्या है? बुआ जी। इनका उपनाम क्या है? बुआ जी। और इन्हें 2001 में भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया है। कौन सा? भारत ज्योति सम्मान। भारत ज्योति सम्मान से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारे जनजाति व्यक्तित्व हैं। ठीक है, फग्गन सिंह कुलस्ते जी। कौन है? फग्गन सिंह कुलस्ते जी, बहुत ही जाने माने राजनेता हैं ये भी। ठीक है, देखिए कहाँ से आते हैं? मंडला से आते हैं। ठीक, मंडला जिले से आते हैं। ठीक है, एक भारतीय राजनीतिक एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है। अभी देख लेते हैं कौन सा विभाग है इनके पास। ठीक, वे भारत सरकार के 16वीं तथा 18वीं, हाँ, 17वीं लोकसभा में संसद चुने गए थे। 18वीं में अभी पराजित हुए हैं। ठीक है, और कहाँ से संबंधित है? मंडला जिले से संबंधित है। किस कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले ये मंडला जिले से क्या विधायक बने। इसके पश्चात फिर उसी सीट से क्या बने? ये सांसद बने और 6 बार की ये लोकसभा सांसद है। ठीक है, और जब मोदी सरकार की जब दूसरी गवर्नमेंट थी उसमें ये इस्पात मंत्री के रूप में राज्य प्रभार में कार्य किए हैं। ठीक है, क्लियर।
ये हो गया क्या हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते। इसके पश्चात देख लेते कांतिलाल भूरिया। ठीक है, कांतिलाल भूरिया, ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है। ठीक है, क्यों, कहाँ से संबंधित है, ये झाबुआ से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से, झाबुआ से संबंधित है। ठीक, इसके पश्चात ये झाबुआ और रतलाम से लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। कहाँ से, झाबुआ और रतलाम से क्या लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, 2009 में, ठीक है, 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार, लेट, ठीक है, आज ही इनका निधन हुआ है मनमोहन सिंह जी का। तो इनके सरकार में ये क्या थे, मंत्री के पद धारण किए थे। कौन सा, मंत्री के पद। और इनके पास कौन सा मंत्रालय था, उपभोक्ता एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया क्या हमारे कांतिलाल जी भूरिया। ठीक है, इसके पश्चात देख लेते हैं। ठीक है, इसके पश्चात निर्मला भूरिया। ठीक है, ये भी बहुत ही आईएमपी, अभी कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। ठीक है, तो किस जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है, झाबुआ से आती है, 5 बार विधानसभा सदस्य रही हैं। ठीक है, ठीक है, 5 बार नहीं, ठीक है, विधानसभा सदस्य रही हैं। ठीक, और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश सरकार के गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री। कौन सा मंत्रालय है इनके पास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इनके पास। ठीक है, इसके पश्चात देख लेते हैं हम, एक आपको नाम याद होगा, बालेश्वर दयाल। ठीक है, बालेश्वर दयाल, ये कहाँ से, इटावा से संबंधित है। लेकिन इन्हें क्यों जाना जाता है मध्य प्रदेश में, इन्होंने डूंगर विद्यालय, ठीक है, डूंगर विद्यालय और भील आश्रम की स्थापना की थी। डूंगर विद्यालय और भील आश्रम की स्थापना की थी। इनके सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें भीलों का गांधी की संज्ञा दी जाती है। किसका, भीलों का गांधी, इसे कहा जाता है, बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। और झाबुआ जिले में इन्होंने आदिवासी के उत्थान के लिए अथक प्रयास, यानी कि अत्यधिक प्रयास किए हैं। किसने, बालेश्वर दयाल जी ने। कौन है ये, भीलों के गांधी की उपसंज्ञा दी जाती है इन्हें। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देख लेते उमंग सिंगार। ठीक है, ये भी आईएमपी, क्यों आईएमपी है, अभी मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें विपक्ष के नेता हैं ये। किसके नेता है, विपक्ष के नेता है। ठीक है, और किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, गंधवानी। ठीक है, किससे, गंधवानी। अब ये कमलनाथ सरकार में कौन सा मंत्रालय था इनके पास, वन मंत्रालय था। कौन सा, वन मंत्रालय था इनके पास। ठीक, क्लियर। ये हो गया क्या हमारे प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, कभी भी यहाँ से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इसके पश्चात और एक देख लेते हैं, लाडोबाई। ठीक है, ये भी पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। कहाँ से संबंधित है ये, झाबुआ जिले से संबंधित है। ठीक है, भील जनजाति से संबंधित है ये। कौन, लाडोबाई। इन्होंने क्या किया, प्रमुख जो भील जनजाति के जो रीति रिवाज है, ठीक है, पशु जीवन के चित्रों के लिए उनका चित्र बनाने वाली कलाकार है, यानी कि पिथोरा चित्रकारी करती हैं ये भी, ये आपको याद रखना है। 1996 में इन्हें लोक रंग फेलोशिप दी गई है। कौन सी, लोक रंग फेलोशिप दी गई, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लोक रंग फेलोशिप दी गई है। ठीक, क्लियर। इसके पश्चात देख लीजिए आप, गंगूबाई। ठीक है, ये भी किस जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। कौन, गंगूबाई। ठीक है, ये भी क्या करती हैं, ये भी क्या, भील जनजाति से संबंधित चित्रकारी करती हैं। किस, कौन सी, पिथोरा चित्रकारी करने का कार्य करती हैं। ठीक, क्लियर। ये हो गया क्या हमारे आईएमपी जनजाति व्यक्तित्व, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग एमसीएस क्लासेस। और हाँ, हमारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।